I greet everyone in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. But I don't want to take much time this morning to telling a lot of things about, but I just want to enter into the word which God has given to me to speak out to the church, to say what God really wants to speak to his people during this time of pandemic, during this time of crisis. There is something very loving words of Christ which he wants to convey to each and every one of us. Praise God. Yes, last days God was with us and God was speaking to us in different ways. And I was thinking about one thing, that, and I was always been reminded that family relationship is very important. Family relationship is very important during this times of pandemic and crisis and sickness and a lot of struggles. No, it's very difficult to go all alone. We need a family. We need a family, and God has adopted us into His family. Praise God for that wonderful family in the spiritual realm we have. And in the same time, at the same time, we have also a physical family on this earth. No, not just only the blood relation family, but in Christ we are in the family of God. That's such a wonderful, and I know God was speaking to me that it's very important to restore that family relationship. So this morning, let us prepare our hearts and mind to receive now what God wants to speak to us. And let us pray that God may touch our lives, God may renew us, and we may experience Christ's love and Christ caring in our life in reality. As the word is coming, let that word may become true to each and every one of us. Now let's pray to God, and let's enter into hearing from the Lord. Shall we look to God in prayer? Heavenly Father, we thank you and praise you for this blessed morning, Lord. Lord, thank you for the fellowship group that you have given to us, Father God. Lord, thank you for the people, Lord, Father God, whom you have delivered them from the bondages of sins, Father God, from the bondages of every demonic attacks, Father God, from the bondages of sicknesses, Lord, Father God. And Lord, Father, this morning, Lord, Father God, amen, with that rejoicing in the Spirit, Lord, we could gather, Father God. Hallelujah. Thank you for the wonderful time of praise and worship that you have given to us. Lord, this morning you bless the word which you have already given, Father God. Lord, let that word which was, Lord, which was written in the scripture, Lord, Father God, in that intensity and with that quality, Father God, that may reach to every home this morning, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you for hearing the prayer. Thank you for blessing us. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we take our Bibles in our hand, and shall we go to Gospel according to Mark chapter 5 verses 1 to 5. First we will read, and then we will go forward. So I would request anyone please help me in reading that Mark chapter 5 verses 1 to 5. Somebody can unmute yourself and read. They went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Praise God. Let the name of the God be glorified through this reading and hearing of the scripture. This morning, I want to title my sermon as Carrying Christ, एक ध्यान करने वाला मसीहा. आज सुबह के समय पर जो शीर्षक परमेश्वर ने हमें दिया है वो ये है ध्यान करने वाला मसीहा. ध्यान करने वाला मसीहा है, Carrying Christ, right? So Christ always cares for us. People are going through
spiritual crisis we could see. Now, there are people that because of losses in the life, because of the fearful circumstances, they have gone into a hopelessness. Right? There is a need for emotional things. राइट, इमोशनल थिंग्स, भावनात्मक तरीके से एक जरूरत लोगों के अंदर में है। इस पैंडेमिक सिचुएशंस में हम जब देखते हैं आजू बाजू में लोगों के जीवन में भय है, लोगों के जीवन में व्याकुलता है, राइट, लोगों के अंदर में एक डर हमेशा बढ़ते जा रहा है। ऐसा एक माहौल में आज मैं और आप हूं। 2020 नहीं तो 2020 जब हम आरंभ किए थे, हम सब में बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस। इस साल में मैं क्या करने जा रहा हूं, हमने बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन तीसरा महीना खत्म होते ही हमें ऐसा लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पानी में वो घुल जा रहा है। जो हमने सपने देखे हैं वो सारे सपने मिटते हुए हम देख रहे हैं। It seems that everything has been lost. Right? At the same time, when we look around, there is a physical need. Physical need. People are wanting for that physical need. नौकरी छूट गया है बहुत सारे लोगों का। लॉकडाउन के सिचुएशन से घर में लोगों के पास अनाज नहीं है, राइट, उनको सैलरी जो मिलता था उसमें डिडक्शन हो रहा है। बहुत सारी बातें, नीड्स जो है वो लोगों का बढ़ रहा है। और उसी समय पर ये सारे जब भावनात्मक तरीके की जो जरूरत है, इमोशनल नीड्स जो है, फिजिकल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स की जब वो क्राइसिस से होकर जा रहे हैं, तो विश्वास कहीं ना कहीं फेड हो जा रहे हैं लोगों का। Now the faith is becoming fade, और कहीं ना कहीं विश्वास जो था 2020 के आरंभ में, वो विश्वास मुरझाता हुआ हम लोगों में, कुछ लोगों में हम वो देख सकते हैं। Now when we see, why this happens is because when we see that people are dying, people are in sickness, people are helpless, तो हमारा विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, डगमगा जा रहा है। ऐसा हम उस प्रकार की परिस्थिति से होकर जाते हैं, right? So we are looking for someone who will lead us. कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमें अगुवाई करेगा, हमें सही राह पर ले जाएगा, ताकि हमारा भय हटाएगा। हम सोच रहे, हम सब कभी कभी सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वही है जो वो टीवी में, न्यूज में आकर के हमें बता रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि हम ये लीड करेंगे, इस प्रकार से हम लीड कर रहे हैं लोगों को हम ऐसे मदद कर रहे हैं। लेकिन आज हम जानते हैं वो भी हेल्पलेस है। The political leaders, political parties, all are helpless in this pandemic situations. हमारा फेथ जो मेडिकल टीम में है, जो मेडिसिन को जो खोज रहे हैं, वैक्सीन जो खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं वो विश्वास भी थमता हुआ जा रहा है। वैक्सीन तैयार हो रहा बोल रहा है, लेकिन वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, कितना समय लगेगा। तो हर एक क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं तो विश्वास वो फेड होता हुआ, जहां लोगों के अंदर में जो विश्वास है वो फेड होता हुआ जा रहा है। बट हम जब ये सब रियलिटी बोल रहे हैं तो हमारा विश्वास जो है वो थमना नहीं है, क्योंकि हम एक आशा रखे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखे हैं। यस, रियलिटी को हम बोल सकते हैं, रियलिटी बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम रियलिटी बोल रहे हैं हमारे अंदर में एक आशा है। मैं आपको जब ये सारी रियलिटी बता रहा हूं, मेरे अंदर में एक आशा है, एक परमेश्वर है जो सारे चीजों के ऊपर नियंत्रित रखा हुआ है, एक परमेश्वर है जो हमारे जीवनों के ऊपर ध्यान करता है। तो वो होप और वो फेथ मेरे अंदर में है, और मैं उस अंदर में रहते हुए, उस दो बात को रखते हुए, आशा और विश्वास मेरे परमेश्वर के ऊपर में रखते हुए, मैं ये रियलिटी को आज सुबह आपके सामने में मैंने प्रेजेंट किया है।
हो सकता है डरावना माहौल है, लेकिन उसके मध्य में एक मसीहा है जो हमारा ध्यान करने वाला है। देयर इज अ क्राइस्ट हु केयर्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। दिस मॉर्निंग गॉड वांट्स टू स्पीक टू अस। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है। पहला पत्रस 5वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा सारा ध्यान उस पर डाल दो, तुम्हारा सारा बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि वो ध्यान करने वाला परमेश्वर है। कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। प्रेज गॉड। पत्रस अपने अनुभव से बोल रहा है। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चला, उसके बाद कलीसिया का जो सेवकाई किया, पहला पास्टर के रूप में, रोम की कलीसिया में जो लीडरशिप दिया हुआ पीटर, प्रेज गॉड, वो अपने अनुभव से बोल रहा है कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल, परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो ध्यान करने वाला परमेश्वर है। एक अनुभव से लिखा हुआ एक आयत। आज सुबह हम जब ये वचन सुन रहे हैं, हमारे जीवन के हर एक बोझ, हर एक तकलीफ, हर एक विषय को आज हम उसके पास में भी हम डालने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारा ध्यान करने वाला परमेश्वर है, वो अनुभव हम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। जैसे कि ये डिसाइपल्स जो बोट के अंदर में, जब वो गन्नेसरत झील से दुष्टात्मा से पीड़ित इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यात्रा में निकला, उस यात्रा के मध्य में जब आंधी आई, जब लहरें उठा, जब पानी इस नाव के अंदर में जब आ गया, प्रेज गॉड, परिस्थिति जब अंधकार की उस परिस्थिति में जब वो डूबने पर थे, पतरस और जो बाकी चेले हैं यीशु से पूछ रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है प्रभु यीशु कि हम डूब रहे हैं? डोंट यू बोदर, क्या आप चिंता नहीं करते कि हम डूब रहे हैं? प्रेज गॉड। आज एक सवाल हम पूछे, राइट, डोंट यू केयर जीसस? प्रेज गॉड, डोंट यू केयर? What will be Jesus' answer? Jesus' answer will be absolutely yes. Hallelujah. तो चेले लोग पूछे, don't you care for us? क्या आप हमारे लिए ध्यान नहीं करते क्या? तुरंत यीशु उठता है, उसकी नींद से उठता है, वो आंधी को थमा देता है। प्रेज गॉड। कभी कभी हम भी हमारी यात्रा में, प्रभु यीशु मसीह के साथ की यात्रा में, विश्वास की यात्रा में, जब आंधी हमारे खिलाफ में आती है, लहरें हमारे खिलाफ में जब उठते हैं, पानी एक रेजिंग की तरह, एक क्रोधित तरीके से जब हवा हमारे खिलाफ में आता है, पानी हमारे खिलाफ में उठता है, हम कभी कभी पूछते हैं परमेश्वर से, क्या God, don't you care for us? Oh, what is Jesus' answer? What is our Messiah's answer? What is our Savior's answer? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उत्तर यह है, absolutely yes. Praise God. Amen. Hallelujah. Now, मरकुस की सुसमाचार 5वीं अध्याय में हम लौट के आए। Now, we know that this gospel is written by Mark, John Mark. Now, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह हमेशा मीट करते थे, द लास्ट सपर जिस घर में हुआ, यीशु मसीह अपने 12 चेलों को जो लास्ट सपर दिया, राइट, और उस घर का ये लड़का, उस घर का एक बंदा जॉन मार्क, ये गोस्पल लिखा है, ये हम जानते हैं। मरकुस की सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो आरंभ से लेकर ये जो 16 अध्याय जो मरकुस की सुसमाचार में है, तो हमें हर एक अध्यायों में ये हमें समझ में आता है, देयर इज ए क्राइस्ट हु केयर्स। एक मसीहा है ध्यान करने वाला, एक मसीहा है, हर एक अध्यायों में हम मिलते हैं। और ये 5वीं अध्याय में भी हम वही ट्रूथ को आज हम देखने जा रहे हैं कि एक मसीहा है जो ध्यान करने वाला एक मसीहा है। 5वीं अध्याय की जो पहली स्टोरी आज हमने जो पढ़ा, पहला 5वीं अध्याय 1 से लेकर 5 तक, वो केवल 5 तक नहीं है, वो आगे जो 20 आयतों तक उस कहानी आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो 6000 दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक व्यक्ति को छुटकारा देने की एक घटना को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर मरकुस ये बताना चाहता है कि मसीहा, क्राइस्ट केयर्स अबाउट आवर स्पिरिचुअल इश्यूज।
मसीहा हमारे आत्मिक विषयों के ऊपर में वो ध्यान करने वाला एक मसीहा है। मरकुस यहाँ पर इस अध्याय में बताना चाहता है कि क्राइस्ट केयर्स अबाउट आवर इमोशनल इश्यूज। मसीहा हमारे भावनात्मक जो विषय है, जो इश्यूज है, उसके ऊपर में वो ध्यान करने वाला मसीहा है। Now, Mark want to reveal to us through this particular chapter that now Christ cares for our physical needs. हमारे जो शारीरिक जो जरूरत है, शारीरिक जो चंगाई है, छुटकारा है, इस विषय के ऊपर में हमारा मसीहा हमारा ध्यान रखता है। ये मरकुस यहाँ पर रिवील करना चाहता है। प्रेज गॉड। आज सुबह ये अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह हमसे, पवित्र आत्मा हमसे ये बात करना चाहता है कि मसीहा आपके हर एक विषय के लिए ध्यान रखता है, आपके परिवार के हर एक विषय के लिए ध्यान रखता है। प्रेज गॉड। आपकी हर एक परिस्थितियों में वो ध्यान रखने वाला एक मसीहा है। ये प्रभु यीशु मसीह ये वचन आज मुझे और हम सभियों को ये बताना चाहता है। प्रेज गॉड। ब्रिंग ऑल योर इश्यूज टू द फीट ऑफ जीसस। आपकी हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास में आप लेके आए और आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशंस को प्रभु यीशु मसीह कैसे बदलता है उस सुसमाचार की घोषणा के द्वारा। प्रेज गॉड। जीसस जो गुड न्यूज बन करके आया, वो गुड न्यूज, वो सुसमाचार जब हमारे जीवन में आकर कार्य करता है, वो हमारे हर एक बैड न्यूज को वो गुड न्यूज में बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज सुबह के समय पर परमेश्वर हमसे ये बातें करना चाहता है। प्रेज गॉड। नो क्राइस्ट हु केयर्स फॉर आवर स्पिरिचुअल इश्यूज। मसीहा जो हमारे आत्मिक विषयों के ऊपर में ध्यान करने वाला। यहाँ पर एक डीमन पोसेस्ड मैन को हम देखते हैं, जो 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 दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक ग्रस्त एक व्यक्ति को हम देखते हैं। आइए हम इस व्यक्ति की ओर हम देखें। तो हम जो पढ़े हुए आयतों से हम कुछ चीजें इस व्यक्ति के बारे में हम ड्रॉ आउट कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ सम ऑफ द थिंग्स। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन? ही लिव्स इन अ टूम, he lives in a tomb, graveyard, right? वो एक कब्र में रहने वाला एक व्यक्ति था। साधारण मनुष्य की तरह घरों में नहीं रहता था। वो घर में बैठ नहीं सकता था, घर में सो नहीं सकता था। उसको घर सोने के लिए या उसको रहने के लिए कब्रिस्तान चाहिए। मरे हुए लोगों को, दफनाए गए लोगों को, जहां पर कंकाले पड़ी हुई है, उस जगह पर उसने अपना निवास स्थान बनाया, वो हम देख सकते हैं। ही कैनॉट बी बाउंड। उसे कोई बांध के नहीं रख सकता था। जंजीरों से लोगों ने बांधने का कोशिश किया, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। Nobody could bind him, right? He could break easily all the chains. जितने भी आयन चेन्स हो, उसे भी वो तोड़ करके वो दुष्टात्मा की कार्यों में वो जुड़ा रहने वाला एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं। He cries out night and day. रात को दिन को उसके मुंह से केवल रोने की आवाज, ये खुशी की आवाज नहीं है, आनंद का विषय वो कहने के लिए उसके पास नहीं है। वो केवल रोने वाला एक व्यक्ति। ही कट्स हिमसेल्फ। वो अपने आप को चोट पहुंचाता था, पत्थर लेकर के अपने शरीर को मारता था, ताकि वो शरीर से निकलते हुए खून को वो देखे। उसके अंदर की दुष्टात्मा उसे इस प्रकार की कार्य कर रहा था। ही इज आइसोलेटेड। उसे क्वारंटीन में रखा गया एक अवस्था। आज हम इस वर्ड को जानते हैं, क्वारंटीन, आइसोलेशन वार्ड। लेकिन आज से 2000 साल पहले ये व्यक्ति भी समूह में नहीं रह सकता था। समूह ने उसे अलग कर दिया था, घर में से रखते नहीं थे। एक क्वारंटीन सेंटर उसके लिए है। उसका क्वारंटीन सेंटर वो ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान था। उसे आइसोलेशन में रखा गया, उसे एकांत जगह पर रखा गया। ही इज टॉर्मेंटेड इन स्पिरिट। उसकी आत्मा में वो दुखी है। जो परमेश्वर ने अपने रूप और स्वरूप से बनाया हुआ इस व्यक्ति, जिसमें शरीर दिया, प्राण दिया, आत्मा दिया, आत्मा परमेश्वर का आत्मा, जिस परमेश्वर में आनंदित मनाना है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में अभी दुष्ट आत्मा की कंट्रोल है, और आज वो आत्मा में दुखी है। He is tormented in the spirit. Praise God. He is filled with demons named Legion.
राइट। उसके अंदर में इतनी दुष्ट आत्माएं हैं, डीमंस है, और उसका एक नाम दिया गया है, वो है लीजियन। लीजियन मींस 6000। प्रेज गॉड। मैं अभी उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं जा रहा हूं, मेरे संदेश में ही मैं खड़ा रहना चाहता हूं। प्रेज गॉड। कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ दिस पुअर मैन? ये व्यक्ति की ये दुविधा को क्या हम एक कल्पना कर सकते हैं क्या? वो जो व्यक्ति नो एक भरपूरी का जीवन बिताना था, लेकिन वो इसकी हालत इतनी खराब हो गया है, इतना बदतर हो गया है, जानवर को भी हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं करते, इस व्यक्ति के खिलाफ में लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। स्पिरिचुअल स्टेट इज डिस्ट्रॉयड बाय डीमंस। उसकी आत्मिकता का जो स्तर है, आत्मिकता का जो जीवन है, दुष्ट आत्मा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। Now the question arises, does Christ care for this man? क्या मसीहा ये इस व्यक्ति के लिए ध्यान रखता है क्या? Absolutely yes, absolutely yes। हम देखते हैं मरकुस की सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 35वीं आयत पर, Mark chapter 4 verse number 35, that day when evening came he said to his disciple, let us go over to other side। राइट। उस दिन काफी वो बिजी था प्रभु यीशु मसीह। सुबह से लेकर के 4 अध्याय जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता, पैराबल्स के तरीके से किंगडम ऑफ गॉड के विषय में वो सिखा रहा है लोगों को। अभी शाम हो गया है, was a very busy day, he was talking and talking and talking and talking। लेकिन जैसे शाम हुआ, जैसे अंधेरा आया, जैसे सूरज ढल गया, अभी चेलों को विवश कर रहा है, चेलों से कह रहा है, लेट अस गो टू द अदर साइड ऑफ गनसरत झील, गनसरत स्ट्रीम। इस गनसरत की उस झील के उस पार में हम चलेंगे। प्रेज़ गॉड। वो एक शब्द हमें ये बताता है कि जीसस वाज केयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैन। क्यों रात को ही? सुबह का इंतजार कर सकते हैं। जो चेले लोग, जो मछुआरे थे, उनको मालूम है कि इस समय वेदर सही नहीं है। क्यों प्रभु यीशु हमसे कह रहा है कि झील के उस पार जाए? प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए वो ध्यान कर रहा है, उसके जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है, मुझे हर हालत में जितनी जल्द हो सके मुझे वहां पहुंचना है बोल करके चेलों के साथ वो आगे बढ़ता है। थका हुआ यीशु, शरीर में थका हुआ यीशु अभी बोट में वो आराम कर रहा है, वो सो गया। राइट। वो आंधी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाया, रात की अंधेरा उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाया, पानी का जो वेव्स है उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाया। प्रेज़ गॉड। यीशु डिस्टर्ब ही नहीं था, परिस्थितियों से यीशु डिस्टर्ब नहीं था। प्रेज़ गॉड। जिसने सब कुछ सृष्टि किया, प्रकृति के सारी चीजों को शब्दों से सृष्टि किया। प्रेज़ गॉड। मनुष्यों को जो अपने हाथ से सृष्टि किया, हालेलुया। जो ये सृष्टि है, सृष्टिकर्ता के खिलाफ में चाहे जितना भी उठे, ये सृष्टिकर्ता को रोक नहीं सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह जानता है। प्रभु यीशु मसीह के मिशंस में चाहे जो भी बाधाएं आए, यीशु के लिए वो बाधाएं है नहीं। हालेलुया। आज सुबह के समय पर जब हम ये संदेश सुन रहे हैं, परमेश्वर जिसे मुझे और आपको बुलाया है, जिसे मुझे और आपको छुटकारा दिया है, आत्मा में चंगाई दिया है, नया जीवन का अनुभव दिया है, मुझे और आपको जब बुलाया है उसकी मिशंस में आगे बढ़ने के लिए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे पानी हमारे खिलाफ में बढ़े, चाहे अग्नि से होकर के जाए, हम उसमें कभी भी हम उसमें खत्म नहीं होंगे। वो हमें हाथ पकड़ करके आगे ले जाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसको अपने मिशंस को पूरी करनी है। हालेलुया। Praise God. He is caring God. Amen. उसके लिए कुछ काम है, हमें जो काम सौंपा गया है, उस काम में चाहे जितना भी बाधाएं आए, यीशु के लिए वो बाधाएं नहीं है। Amen. Praise God. हमारे लिए शायद बाधाएं हो सकती है, हमारे लिए रुकावट हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो बाधाएं नहीं है। Praise God. ये कोरोना सिचुएशन हमारे लिए एक बाधा हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु
यीशु मसीह के लिए बाधा नहीं है। प्रेज गॉड, उस पार हम जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। वहां पर कुछ लोगों को प्रभु परमेश्वर के राज्य में लेके आने की जरूरत है। प्रेज गॉड, हालेलुया। केवल गलील की इस समुद्र की इस पार में सेवकाई नहीं, लेकिन उस पार में जो अन्य जाति लोग रहते हैं, अन्य जाति की आराधनाएं होती है, वहां पर जीवते परमेश्वर की भी आराधना वहां उठनी है। Praise God, हालेलुया। वहां के लोग भी जीविते परमेश्वर को जानना है, उद्धारकर्ता के अनुभव में आना है, वहां भी घुटने टेकने हैं, जुबाने कबूल करना है, यीशु ही प्रभु है। Praise God, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा में यीशु मसीह में चिंता नहीं था, यीशु मसीह में टेंशन नहीं था। Praise God, हालेलुया। Amen. Does Christ cares for this man? Yes, absolutely yes. Praise God. Amen. झील के उस छोर पर एक व्यक्ति है, दिन और रात रो रहा है। Praise God. क्यों रो रहा है? मुझे कब छुटकारा मिलेगा? मेरे शरीर में जो दुष्ट आत्मा है मुझे पीड़ा दे रहा है, मैं दर्द में हूं। कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो मुझे छुड़ा सके, मुझे कौन छुटकारा देगा? Praise God. उसकी आवाज जीवित परमेश्वर ने सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया। Praise God. Amen. और इस झील के इस छोर में Praise God, एक सॉल्यूशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह अभी यात्रा आरंभ कर रहा है। Praise God. He boarded the boat. हालेलुया। बोट में वो सवार हो गया और आगे बढ़ा, और हम जानते हैं कि वो बीच में क्या क्या हुआ। Praise God. Amen. हालेलुया। राइट, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस झील के उस छोर में पहुंचा, हम देखते हैं राइट, वहां पर जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित जो व्यक्ति था, वो भागता हुआ यीशु के चरणों पर आकर गिर गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकारने के लिए नहीं आया। प्रेज गॉड। यीशु जब लैंड किया, यीशु जब लैंड में उतरा, प्रेज गॉड, जब वो जमीन पर पांव रखा इस झील से, राइट, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आया उसे स्वीकारने के लिए, उसे वेलकम देने के लिए। लेकिन दुष्ट आत्मा से पीड़ित, इसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा था, वो ऑलरेडी समझ लिया था कि यीशु आ रहा है। प्रेज गॉड। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु पहले ही इस दुष्ट आत्मा को डांटते हुए, परमेश्वर का वचन बताता है, मरकुस की सुसमाचार 5वीं अध्याय उसकी 8वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 5 वर्स नंबर 8, वहां लिखा है, for Jesus had said to him, come out of this man, you impure spirit. Praise God. ये व्यक्ति को देखने से पहले ही यीशु मसीह एक ऑर्डर दे चुका था, एक कमांड दे चुका था कि वो व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो दुष्ट आत्मा उसकी शरीर छोड़ करके निकल जाए। लेकिन नहीं निकला, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकला, पहले कमांड में नहीं निकला। प्रेज गॉड। उसीलिए यीशु उससे पूछता है, तेरा नाम क्या है, आप बता। और कभी कभी हम जब दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, परमेश्वर के दास लोग जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को जब निकालते हैं, पहले एक शब्द जब बोलते हैं तो वो नहीं निकलता है। फिर परमेश्वर के दास लोग पूछते, तेरा नाम क्या है। इट इज बिब्लिकल। कभी कभी हम बोलते हैं कि बिब्लिकल नहीं है, नाम पूछना बिब्लिकल नहीं है। इट्स बिब्लिकल। यीशु मसीह भी पूछा, तेरा नाम क्या है बता। मैंने कमांड किया फिर भी तू नहीं गया, मेरे पास में आ गया, मेरे पांव में आके तू गिर गया और मुझसे गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे प्रार्थना विनती कर रहा है। देखो, दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना विनती करता है। ये अध्याय में हम समझ सकते हैं। हमें ताड़ना मत दे, हमें और दर्द मत दे, हमें यहाँ से निकाल मत। ये बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट वहां पर दुष्ट आत्माएं भी रखते हुए हम देखते। दुष्ट आत्माओं को भी मालूम है प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का बेटा है, वो मसीहा है बोल करके। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। आज सुबह प्रेज गॉड, हम जो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, कितना अधिक हम परमेश्वर के सामने उसके चरणों में हम परमेश्वर से विनती करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। दुष्ट आत्मा भी जानता है यीशु से विनती करेगा तो यीशु सुनेगा और उसी प्रकार से करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन में, आइए हम इस व्यक्ति की ओर हम देखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट छुटकारा देता है। हम जानते हैं क्या घटना, उस घटना में मैं नहीं जाना चाहता। कैसे वो सुअरों के अंदर में 2000 सुअर जो वहां पर गन्नेसरत के झील के उस किनारे पर जो चर रहे थे,
दुष्ट आत्मा ने विनती की कि उसके अंदर हमें भेज दे, यीशु मसीह उसे उसके अंदर भेज देता है। ये व्यक्ति में कंप्लीट डिलीवरेंस आ जाता है, ये व्यक्ति में कंप्लीट छुटकारा आ जाता है। ये व्यक्ति अभी कपड़े पहन करके अभी यीशु के चरणों पर बैठा हुआ है। प्रेज गॉड, हाउ जीसस केयर्स। प्रेज गॉड, नंगा पड़ा हुआ है व्यक्ति, अधनंगा पड़ा हुआ व्यक्ति। प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जब आया, जब उसे छुटकारा मिला, प्रेज गॉड, वो वेल ड्रेस्ड होकर के यीशु के चरणों पर गिर गया। प्रेज गॉड, यीशु के चरणों पर बैठ गया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा रूपांतर आ गया। प्रेज गॉड, सी द हार्ट ऑफ जीसस। हालेलुया। हम हार्ट ऑफ जीसस के बारे में देख रहे हैं, यीशु किस प्रकार से केयर करता हुआ हम देख रहे हैं। प्रेज गॉड, जो 4 अध्याय में जिस क्राउड को यीशु मसीह सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, वो क्राउड से प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सका इस व्यक्ति में छुटकारा लाने के लिए। प्रेज गॉड, उस रात का अंधेरा यीशु मसीह को रोक नहीं सका इस व्यक्ति में छुटकारा दिलाने के लिए। प्रेज गॉड, नो, ये आंधी प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सका इस व्यक्ति में छुटकारा लेके आने के लिए। प्रेज गॉड, आज सुबह के समय पर हमारी हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु मसीह के पास में हम लेके आए। ब्रिंग ऑल योर सिचुएशंस बिफोर जीसस। हालेलुया। जीसस हैज द अथॉरिटी टू कन्फ्रंट ओवर द डीमंस। Praise God. Jesus has got the authority to confront upon the demons and upon all the spiritual matters. If this morning somebody is going through spiritual crisis, आज सुबह के समय पर किसी प्रकार का एक आत्मिक विषय से, आत्मिक संघर्ष से होकर के जा रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे, एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस से होकर के जा रहे हैं, एक सूखापन की अवस्था से होकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बांध के रखा हुआ, स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति नहीं कर पा रहे हैं। कम टू जीसस, दिस डे इज द डे ऑफ डिलीवरेंस, बिकॉज़ जीसस हैज ए हार्ट टू डिलीवर ऑल ऑफ अस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक हृदय है जो केयरिंग हृदय है, जो हमें छुड़ाना चाहता है, लेकिन मुझे यीशु के चरणों पर आना है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से एक छुटकारा इस व्यक्ति में देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति क्या करता है? प्रेज गॉड, वो बोलता है कि यीशु तू मेरे साथ, तेरे साथ मैं आगे जाना चाहता हूं, तू मुझे ले ले तेरे ग्रुप में। प्रभु यीशु बोलता है नहीं, तू जा, यू गो। प्रेज गॉड, यू गो टू योर होम, तू अपने घर में जा। हालेलुया। बता कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ है। मैं विश्वास करता हूं जब वो वापस अपने घर में गया, जब वो उस 10 शहरों में गया, उसकी 20वीं आयत में हम लिखते हैं कि 20वीं आयत में हम देखते हैं, सो द मैन वेंट अवे एंड बिगन टू टेल in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Praise God. Amen. वो डेकापोलिस में जाता है, 10 शहरों में जाता है, 10 शहर जो अन्य जातियों से भरा हुआ है, वहां पर वो गवाह बनता है। वो बोलता है, once I was lost but Jesus found me. Hallelujah. Praise God. एक समय में आत्मा में दुखी था, लेकिन मेरी आत्मा में आनंद दिलाया। प्रेज गॉड। कौन दिलाया? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीहा जो है वो मेरे जीवन में आया, वो मेरे पास में आया जब कोई लोग मुझसे केयर नहीं करते थे। देयर वाज ए जीसस। हालेलुया। एक यीशु है, एक मसीहा है, वो लोगों की सुना नहीं, लोगों की बातों पर रुका नहीं, लेकिन मेरे पास में आया और मुझे छुटकारा दिया। प्रेज गॉड। आमेन। आज सुबह हम सभी लोग छुटकारा पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की उस ध्यान को हम अनुभव किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें कितना ज्यादा इस व्यक्ति से हमें बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का केयर मेरे जीवन में आया है, आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह केयर करने के लिए योग्य है। हालेलुया। Praise God. This is a missional message to each and every one of us. Praise God. यीशु मसीह चाहता है तू जाकर बोल तेरे जीवन में क्या हुआ है। आमेन। कोरोना सीजन है, हम घर में बैठे हुए हैं, अनलॉकिंग का समय है, लेकिन इस लॉकिंग और अनलॉकिंग का समय है, इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम परमेश्वर का केयरिंग कैरेक्टर को हम बोल सकते हैं। परमेश्वर ने हमें माध्यम दिया है, हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जूम के जरिए, गूगल मीट के जरिए, बहुत सारे माध्यम, टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के जरिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये उत्तरदायित्व दिया, जिम्मेदारी दिया है कि
परमेश्वर का जो केयरिंग हार्ट जो हमने अनुभव किया है, दूसरे लोग जो बंधन में हैं, दूसरे लोग जो दर्द में हैं, दूसरे लोग जो दिन और रात रो रहे हैं, उसके पास में मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द बन करके पहुंचने के लिए आज सुबह के समय पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। केवल हम में ही तृप्त होकर, मेरे जीवन में क्या किया है उसमें तृप्त होकर रहने के लिए नहीं है। इस व्यक्ति की तरह तू जाकर बोल, तेरे जीवन में मैंने क्या किया है। प्रेज गॉड, दैट इज द कॉल व्हेन गॉड डिलीवर्स वन। यदि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जब छुटकारा देता है, वो चुपचाप उस छुटकारे में आनंदित बनाते हुए अपने घर में बैठने के लिए नहीं है, लेकिन जा करके बोलने के लिए है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, प्रेज गॉड। हम इसमें तृप्त ना रहे कि मैं कुछ अपने ही परिवार में खुश ना बैठे, लेकिन हमें परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए उसकी प्रेम की संदेश को बोलने की एक जिम्मेदारी मुझे और आपको दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम दूसरे भाग में हम जाए, प्रेज गॉड, दूसरी स्टोरी में हम जाए। हम उसकी 5वीं अध्याय का 21 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, प्रेज गॉड, लॉर्ड, अब यीशु मसीह एक दूसरी यात्रा में है। प्रभु यीशु मसीह याईर की बेटी जो मरने पर है, the Jairus' daughter who is on that deathbed, इसको वो बीमारी की आखिरी स्टेज में, वो 12 साल की बेटी पहुंच चुकी है। उस बच्ची को बचाने की एक यात्रा में यीशु मसीह आगे बढ़ रहा है। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह की हर एक यात्रा में कोई ना कोई बाधाएं आता है, कोई ना कोई रुकावटें आती है, ताकि लोग ये समझते हैं कि नहीं, अब यीशु से कुछ भी नहीं होगा। जैसे चेले लोगों ने कहा इस यात्रा में, आंधी से भरा हुआ उस अंधियारी रात की यात्रा में, क्या डोंट यू बॉदर फॉर अस, डोंट यू केयर फॉर अस। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह की यात्रा में बहुत सारी बाधाएं, लेकिन बाधाएं प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का कार्यों को रोक नहीं पाया। प्रेज गॉड, बिकॉज ही इज रेनिंग ओवर ऑल द सिचुएशंस, ऑल द स्ट्रगल्स, ऑल द डिफिकल्टीज। प्रभु यीशु मसीह रूल कर रहा है, रेन कर रहा है। ये संदेश आज सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहना चाहता है। प्रेज गॉड। इसी यात्रा की मध्य में एक स्त्री याईरोस की घर की यात्रा के बीच में एक स्त्री को देखते हैं। 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित एक स्त्री। इस स्त्री की अवस्था को हम देखें, उसकी हम पढ़ते हैं, उसकी 25 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, हम ये कहानी जानते हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इस स्त्री को हम देखें, we read about a woman, the story of a woman who is bleeding for last 12 years. She is having a chronic sickness. ये जो बीमारी जो है बहुत ही पुरानी बीमारी है, और ये बीमारी में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, इस प्रकार से लिखा गया है। Went to many doctors. ये स्त्री काफी डॉक्टर्स के पास में गए। इस शहर में जितने डॉक्टर्स थे, जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हाथ धो बैठे कि इसमें चंगाई नहीं आएगा। सफर्ड अंडर देयर केयर। डॉक्टर्स लोग की ट्रीटमेंट में बहुत सारे सफरिंग है। हम भी जानते हैं, हम जब लोग जो बीमार में हैं, जो कैंसर से पीड़ित है, नहीं तो जो किडनी फेलियर से पीड़ित है, नहीं तो बहुत सारे बीमारियों से जो लोग टर्मिनल इलनेस से जो पीड़ित है, ऐसी लोगों, एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर से तीसरी डॉक्टर, कैंसर के समय में कीमोथेरापी, और ये सब थेरापी जब करते हैं, कितनी दर्द से होकर कंडीशन वर्स होते जाता है। डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन दैट टर्न्स इनटू ए वर्स सिचुएशन। प्रेज गॉड। ना हम में से अधिकतर लोग का भी ये अनुभव हो सकता है कि डॉक्टर के पास में गया, टैबलेट्स लिया, दवा लिया, लेकिन इट बिकम मोर वर्स। प्रेज गॉड, आमेन। मैं जानता हूं कि हम भी उस प्रकार के अनुभव से होकर के गए हैं, और वो सिचुएशन था ये स्त्री का भी। द कंडीशन वाज बिकमिंग वर्स। बेटर होने के बजाय ये वर्स पर वर्स हो रहा है। शी स्पेंड ऑल हर मनी, सारा धन जो उसके कमाया हुआ था, उसके पास जितने भी पैसे थे, वो जो कमाए थे, मेहनत किया हुआ सारा पैसा उसने गवा दिया, डॉक्टर्स को दे दिया, लेकिन उसका कंडीशंस क्लियर नहीं हुआ, उसका कंडीशंस में हीलिंग नहीं आया। द सिकनेस ऑल्सो मेड हर अनक्लीन। इसकी जो बीमारी थी, जो धार्मिकता के विषय में जूइश रिलीजियस सिस्टम में सेरेमोनियली अनक्लीन करके इसे माना जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
नो कुड नॉट एसोसिएट विद पीपल, लोगों के साथ में मिलजुल नहीं सकते हैं, ये भी एक क्वारंटीन स्टेज में है, राइट? 2 गज की दूरी इसको भी रहना है, इसको भी सबके साथ में 2 गज की दूरी में रहना है, कोई इसे टच नहीं कर सकता, राइट? कोई इसको छुएगा तो वो भी अछूत माना जाएगा। तो ऐसी एक आइसोलेशन में जीने वाली ये स्त्री, शी वॉज फाइनेंशियली बैंकरप्ट, राइट? आर्थिक अवस्था से भी वो बैंकरप्ट हो चुकी है, वो अभी कर्ज लेने लगी होगी, उधार लेने के लिए वो लगी होगी। नो, शी इज वरीड अबाउट हर फ्यूचर, उसकी भविष्य के विषय में वो चिंतित है। एंड ऑल्सो शी हैज एन इमोशनल पेन, मैं उसकी एक भावनात्मक तरीके से भी एक दर्द से होकर के जा रहा है, मानसिकता में भी दर्द है, शरीर में तो है बीमारी, लेकिन वो शरीर की बीमारी उसकी मानसिक अवस्था को भी बिगाड़ दिया है। तो इसको हमेशा स्ट्रेस, हमेशा रोना, अकेले में बैठ के रोने की अवस्था, वरीड अबाउट हर लाइफ, क्या मेरा फ्यूचर एक अच्छा हो सकता है क्या, लोगों से फेलोशिप में मैं वापस आ सकता हूं क्या, बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ ये स्त्री को हम यहाँ पर हम देखते हैं। जीसस वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट दिस वुमन, प्रभु यीशु मसीह को इस स्त्री के बारे में सब कुछ वो जानता था। एंड जीसस वाज आल्सो क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस वुमन। हम जानते हैं कि ये स्त्री किस प्रकार से विश्वास के साथ पर कि मैं यदि प्रभु यीशु मसीह की वस्त्र की छोर को यदि मैं टच कर लूंगी, प्रेज गॉड, मुझे चंगाई मिलेगा। और उसके उसी विश्वास में हम जानते हैं कि भीड़ को चीरते हुए उस क्राउड के बीच में से वो निकलते हुए यीशु मसीह की वस्त्र को छोर को छूती है, तभी यीशु मसीह को भी पता चलता है और इस स्त्री को भी पता चलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम हीलिंग प्राप्त करते हैं, जब हम डिलीवरेंसेस प्राप्त करते हैं, जब हमारे जीवन में छुटकारा होता है, प्रेज गॉड, केवल मुझे ही पता नहीं चलता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह को भी पता चलता है जिसने मुझे छुटकारा दिया है। हालेलुया। ये स्त्री पीछे से आके छुई होगी, उसने सोची होगी कि यीशु को पता नहीं चलेगा। आमेन, प्रेज गॉड। छुटकारा पाए हुए लोगों को आज सुबह के समय पर प्रभु यीशु ये संदेश देना चाहता है, जब तुम छुटकारा प्राप्त किए हो उसी क्षण मैं भी जान लिया हूं, मैं ऑलरेडी देख लिया हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये स्त्री सोची चुपचाप से निकल जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री के लिए अवसर बनाता पूछता है, हु टच्ड मी, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। चेले लोग परेशान हो गए, पत्र सबसे ज्यादा परेशान हो गए, यीशु क्या बोल रहा है, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। इतनी भीड़ है और पूछ रहा है किसने मुझे छुआ। यीशु बोला, नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ। जब ये स्त्री को पता चला कि वो छुप नहीं सकती है, प्रेज गॉड, यीशु ने उसे अवसर बना के दिया। प्रेज गॉड। हमें जब भी हमें छुटकारा मिलता है, जब भी हमें चंगाई मिलता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो अवसर बना के देता है ताकि हमारी सारी सच्चाई को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम बोले। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर एक शब्द है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ, राइट? यहाँ पर उसका वर्स नंबर 31 में लिखा है, सॉरी 32 और 33 में लिखा है। Now, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Told him the whole truth. पूरी सच्चाई को उसने बताया। Praise God. Amen. ये स्त्री के लिए एक अवसर बना के दे रहा प्रभु यीशु मसीह। Who touched me? वो सवाल के ऊपर यीशु चाहता था कि अपने जीवन की सारी सच्चाई को वो बताए। हालेलुया। और ये स्त्री बोलती है, प्रेज गॉड, अपनी पूरी कहानी को वो बोलती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। आज सुबह के समय पर प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहता है, नो, आई एम ए गॉड हु कैन गिव यू ए होलिस्टिक हीलिंग। प्रेज गॉड। ये स्त्री के जीवन में एक शारीरिक चंगाई का अनुभव इसने किया। ये केवल एक शारीरिक चंगाई नहीं था, उसकी एक मानसिक चंगाई, उसकी मेंटालिटी में भी परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया। प्रेज गॉड। ना केवल उसकी मानसिक में, उसकी इमोशनल स्टेज में भी परमेश्वर ने चंगाई दिया। ना केवल इमोशनल में, एक समूह में भी उसको एक चंगाई दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और सोशल हीलिंग। प्रेज गॉड। जो सोसाइटी उसको दूर रखे थे, अभी उस भीड़ के साथ में उसे चलने के लिए अनुमति प्रभु
यीशु मसीह की उस स्पर्श, उसकी उस स्पर्श यीशु पर, यीशु का शब्द जो उसके ऊपर था, गो इन पीस माय डॉटर, प्रेज गॉड, योर फेथ हैज हील्ड यू, प्रेज गॉड। उसे जो यीशु भी स्पर्श किया होगा, मैं विश्वास करता हूं, उससे समूह को पता चल गया कि अब से ये अनक्लीन नहीं है। उसका सोशल जो बैरियर्स था, वो सब कुछ उस चंगाई में मिल गया। हालेलुया। आवर गॉड इज अ गॉड हु गिव्स ए होलिस्टिक हीलिंग, प्रेज गॉड। हमारे शरीर में जब चंगाई देता है, हमारी मानसिकता में चंगाई, हमारी इमोशंस में चंगाई, हमारे समूह में भी एक चंगाई दे करके हमें एक होलिस्टिक तरीके से आगे ले जाने वाला एक प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसी समय जब ये पूरी स्टोरी बताया जा रहा है, याईर के घर से एक मैसेज आता है, नो देयर इज ए न्यूज कमिंग। अभी नो मास्टर को अभी बोदर, व्हाई बोदर द टीचर एनीमोर, जायरस डॉटर इज डेड, याईर की बेटी मर गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जीसस वाज इन ए जर्नी फॉर ए अर्जेंट मैटर, एक बहुत ही एक अर्जेंट मैटर की जर्नी पर प्रभु यीशु मसीह था। याईर की बेटी जो मृत्यु की उस आखिरी मृत्यु पर है, आखिरी सांस ले रही है, उसके पास दैट वाज एन अर्जेंट नीड। और साथ ही साथ में दिस मैन इज ए सोशली एक नॉन व्यक्ति है, सिनागोग का लीडर है, एक सोशल स्टेटस को मेंटेन करने वाला, एक नाम है उस सोसाइटी में व्यक्ति का। ये व्यक्ति का विषय बहुत ही अर्जेंट था। But you know one thing, when Jesus had that urgent matter to be dealt with, at the same time Jesus understood there is another important matter to be dealt. Amen. Praise God. एक अर्जेंट मैटर भी है, एक इंपॉर्टेंट मैटर भी है। प्रभु यीशु मसीह को अर्जेंट मैटर से बेहतर तरीके से वो जानता है कि इंपॉर्टेंट मैटर को पहले मुझे सॉल्व करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम हो सकता है हम कभी कभी हमारा अर्जेंट विषय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह से हम मांग रहे हैं, प्रेज गॉड, परमेश्वर ये करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है उससे भी एक इंपॉर्टेंट विषय को भी मुझे करना है। हालेलुया, praise God. You should understand, church, this morning there is an urgent matter, there is an important matter, but for my Lord, my Savior, my caring God, for him both the matter is an equal. हालेलुया, दोनों मैटर उसके लिए उतना ही गंभीर है, उतना ही सीरियस है। प्रेज गॉड, आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं व्हाई देयर इज अ डिले। यीशु मसीह जब डिले करता है हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर में, हम सोचते हैं क्यों डिले हो रहा है। बट जीसस when we feel that he is delaying, but he is never denying, वो कभी भी इनकार नहीं कर रहा है, उसकी समय पर वो करने के लिए योग्य परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया, राइट। व्हाई बॉदर नाउ। कभी कभी हम बोलते बहुत दिन हो गया है, ये बीमारी अब जाएगा नहीं, मुझे अब छुटकारा नहीं मिलेगा, अभी मृत्यु ही मुझे क्या करेगा, ये बीमारी मुझे मृत्यु तक ले जाएगा। कभी कभी हम वो सोच करके व्हाई बॉदर जीसस, अब ये प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देते हैं। आज सुबह के समय पर जो ये वचन को सुन रहे हैं, शायद आप कुछ बीमारी से होकर के जा रहे हैं, शायद आप कुछ विषय के ऊपर में काफी आपने ट्राई किया, लेकिन आप सब जगह पर फेल हो चुके हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि आर्थिक अवस्था मेरी कभी भी चेंज नहीं होगा, मेरी आर्थिक अवस्था ऐसा ही रहेगा, इसमें मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, ये इस बंधन में मैं रहूंगा। प्रेज गॉड, मेरे जीवन में कभी प्रमोशन नहीं बनेगा, मैं पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से एक ही स्टेट पर हूं। Praise God. मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, अभी छोड़ो, प्रार्थना भी छोड़ दो। नो, praise God. Let me tell in the spirit of the Lord that no, praise God. परमेश्वर कभी कभी डिले करता है, वो कभी भी डिनाई नहीं करता है। विषय को हम परमेश्वर के पास में ही रखें, उसको हम डिलीट ना करें। यदि हम प्रेयर रिक्वेस्ट को हम रखे हैं परमेश्वर के सामने में, लगातार हम प्रार्थना करें। Praise God. Hallelujah. Do not give up in the prayer request. If you not give up in the prayer, do not stop praying unto the Lord. Praise God. Continue to pray. That's what God wants to speak to us, because he is a caring God. Hallelujah. हम लगातार उससे बातें करते रहे, वार्तालाप करते रहे। Praise God. यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह, overhearing what they had said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Hallelujah. यीशु क्या बोल रहा है? Don't be afraid. जायरस
जायरस, डोंट बी अफ्रेड। याईर, तुम भयभीत ना हो, तुम डर मत, केवल विश्वास कर। प्रेज गॉड। डोंट बी अफ्रेड। प्रेज गॉड। ओनली have faith. Have faith. I am with you. I am walking with you. You are with me. I have taken the matter in my hand. Praise God. Yes, there is some delay has happened, but that is not a denial. Don't be upset by hearing what the world is speaking. Praise God. ना दुनिया की आवाज के ऊपर में आप अपने आप को निराश मत करो, केवल विश्वास करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। पिछले 14 दिन से हम भी उस प्रकार की सिचुएशन से गए हैं, इसीलिए मैं आज सुबह के समय पर आत्मा में ये बोल सकता हूं, जो आवाज मैंने सुना ये था, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। कलीसिया के लिए आज सुबह के समय पर परमेश्वर ये वचन देना चाहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। प्रेज गॉड, हालेलुया। ट्रबल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, बीमारी आएंगे, लेकिन मत डर, तू केवल विश्वास कर, क्योंकि मैं तेरे साथ यात्रा कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने तेरे विषय को ले लिया है याइरस। हालेलुया। जाइरस, आई हैव टेकन दैट मैटर। प्रेज गॉड, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। राइट, हम यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंचते ही, हालेलुया, वो विश्वास करने वाले कुछ लोगों को लेके गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, याईर और उसकी पत्नी को लेकर के उसके घर के अंदर में जाता है, और वहां पर उस बेटी के जीवन में, प्रेज गॉड, उस बेटी को वापस एक नया जीवन देते हुए हम देखते हैं। तबीता खौम, उठ जा बेटी, हालेलुया, उठ खड़ा हो लड़की। प्रेज गॉड, आमेन। हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उस व्यक्ति उस बेटी को चंगाई देते हुए, हालेलुया, प्रेज गॉड, amen. Jesus always wants to remove fear from us and instill faith. इंस्टिल फेथ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारी भय को दूर करके उस भय की जगह पर वो विश्वास को इंस्टिल करने वाला एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ में है। हालेलुया। आज सुबह के समय पर, प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा हमसे ये बातें करना चाहता है कि हमारे जीवन में जब हम भय से होकर के जाते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह है जिसके अंदर एक केयरिंग हार्ट है, एक ध्यान करने वाला एक हृदय है। वो केवल ये चाहता है कि बेटा, बेटी, तू विश्वास कर। प्रेज गॉड, मैं तेरे साथ में हूं। आई एम विथ यू, हैव फेथ। हालेलुया, प्रेज गॉड। वेदर इट इज डीमन, चर्च में आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, वेदर इट इज डीमन और वेदर इट इज डिसीज और वेदर इट इज डेथ, प्रेज गॉड, हालेलुया, चाहे वो दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, चाहे एक बीमारी क्यों ना हो, चाहे एक डेथ क्यों ना हो, प्रेज गॉड, इसके मध्य में प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहता है, डू नॉट बी फियरफुल, जस्ट बिलीव। हालेलुया, केवल विश्वास कर, तो डर मत। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। ये सीक्वेंस, स्टोरी का सीक्वेंस जब आप देखेंगे, पहले एक अननोन व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह, एक अननोन मैन को प्रभु यीशु मसीह छुटकारा और चंगाई देता है। दूसरा, एक अननोन वुमन को, एक वुमन को, वो एक औरत को प्रभु यीशु मसीह छुटकारा और चंगाई देता है। तीसरा, हम देखते हैं एक बेटी को, एक चाइल्ड को, एक बच्चे को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी मैन, गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी वुमन, गॉड इज इंटरेस्टेड इन एवरी चाइल्ड। हालेलुया, व्हाट ए ब्यूटीफुल चैप्टर इज दिस। प्रेज गॉड, एक कंप्लीट फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर लिखा हुआ, पवित्र आत्मा में लिखा हुआ, ताकि परिवार लोग पढ़ करके इस वचनों में हम छुटकारा को हम प्राप्त करें। प्रेज गॉड, है ना, चाहे हम किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। Praise God. Our God is a caring God. He comes to us and delivers us. Hallelujah. Praise God. चाहे हम कोई भी सिचुएशन से क्यों ना होके जा रहे हैं, चाहे हमारा सिचुएशन अक्यूट होगा, क्रोनिक होगा, हमारी बीमारियां क्रोनिक होगा, उसके भी मध्य में भी वो छुटकारा देने के लिए योग्य परमेश्वर है। 12 साल से पीड़ित वो औरत, प्रेज गॉड, 12 साल की एक बेटी जो अचानक से बीमारी आए, परमेश्वर सबको, परमेश्वर चंगा करके, छुटकारा दे करके, केवल ना वो चाहता है कि हम विश्वास हम रखते हुए हम आगे बढ़े। प्रेज गॉड, इवन जीसस इज टेलिंग द सेम थिंग दिस मॉर्निंग। जो यीशु मसीह ने
जायरस से कहा, डो नॉट फियर, जस्ट बिलीव। हालेलुया। आज कलीसिया के लिए एक केयरिंग गॉड का मैसेज है, डो नॉट फियर, जस्ट बिलीव। हालेलुया। डो नॉट फियर, जस्ट बिलीव। हालेलुया, प्रेज गॉड। वहां पर आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का करुणा में हाथ को आप अब देख सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन फियर वी सी डेथ, but in faith we see Jesus is just sleeping. In fear we see death, but when in faith we see that Jesus is just sleeping. Hallelujah. उसे पुकारो, वो उठेगा। Praise God. वो फियर की जगह पर वो विश्वास को इंस्टिल करने के लिए योग्य है। Praise God. In fear we see a demonic person, but in faith we see a missionary with gospel. Hallelujah. Praise God. नो, हम जब डरते हैं तो हम देखते हैं कि दुष्टात्मा से पीड़ित एक व्यक्ति, डर बोलते हैं दुष्टात्मा से पीड़ित तो व्यक्ति, लेकिन विश्वास बताता है वो व्यक्ति एक मिशनरी है प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता को बोलने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन फियर यू सी एन अनक्लीन वुमन, प्रेज गॉड, बट इन फेथ यू सी ए वुमन who has a wonderful testimony to share to the entire world. The whole truth can be revealed through this woman. Hallelujah. Praise God. आज सुबह के समय पर एक केयरिंग जीसस मुझे और आपको बुला रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमारी हर एक सिचुएशंस में, हमारी हर एक फैमिली के मैटर्स में, हमारी एक व्यक्तिगत विषयों में वो हमारे पास में आकर के वो ध्यान दे करके हमारे विषयों के ऊपर में वो अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। ये संदेश आज सुबह प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। फाइनली इस कोविड सीजन में जब हम हैं, इस पैंडेमिक से होकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेज़ गॉड, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछना चाहता है, तुम्हें क्या चाहिए? हालेलुया। तुम्हें क्या चाहिए? What do you want? This silent voice. No, if today Jesus is asking you, आपके कमरे में, आपके लिविंग रूम में, आपकी बेडरूम में, आपकी बेड में, प्रेज़ गॉड, जो ये वचन आप सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह आपके कान में आकर पूछ रहा है, बेटा, बेटी, what do you want? प्रेज़ गॉड। तू चुपचाप क्यों है? तू निराश क्यों है? तू होपलेस सिचुएशन में क्यों है? क्यों तुम परेशान है? What do you want? Praise God. राइट, मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में जो परमेश्वर मुझे सिखाया, एलिया ने एलीशा से पूछा, इतना दिन तू मेरे साथ चला। 2 Kings chapter 2 verses 8 onwards, हमने नागपुर फेलोशिप में उसको हमने डील किया था, उस विषय के ऊपर में हमने सीखा था। एलिया एलीशा से पूछता है, What do you want? इतना दिन तू मेरे साथ चला। एलीशा बोलता है, I want the double portion of your anointing. Praise God. I want the double portion of your anointing. मेरा सीजन में वो अभिषेक काफी नहीं है। हालेलुया। मुझे तेरे अंदर में जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। Praise God. Amen. Caring God आज हमसे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। वही केयरिंग जीसस डिसाइपल्स को सिखाया, पिता परमेश्वर से भी तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो कितना अधिक वो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। नाउ लेट मी टेल यू चर्च व्हाट वी नीड एट दिस टाइम with the discerning of the Spirit, let me tell each and every one of you, let us seek God. Let us ask God, God, I need the double portion of anointing. Praise God. Because Isaiah chapter 10 verse 27 will happen when that anointing will come upon us. Praise God. The anointing will break all the oppressions. Hallelujah. वो अभिषेक हर प्रकार की जुआओं को, बोझ से दबा हुआ जो जुआ है, उसको तोड़ने के लिए केवल अभिषेक में ही वो सामर्थ है। हालेलुया। रिबाना रबा शब्दराधना, रिबाना हुडबारा बा शब्दराधना। आज सुबह के समय पर हम परमेश्वर के समीप में इस वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करें, जैसे वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह गनसरत की झील से जब इस छोर में कदम रखा, वो भागता हुआ यीशु के कदमों पर गिर करके कैसे समर्पित किया। आज सुबह हम समर्पित करें, हम सरेंडर करें और बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु तूने मुझे छुड़ाया है, इस छुटकारे की जीवन में आई नीड अ डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग। हालेलुया। रिबाना शब्द आराधना।